Hello student, today we will study chapter 5 major domain of the earth of your geography book. In our previous class we had already discussed about major components of the earth and we had studied lithosphere in detail, and lithosphere is made up of different types of continents, that is Asia continent, Europe continent, Africa continent, North America continent, South America continent, and Australia continent, Antarctica continent. Now we will discuss about hydrosphere. The earth is called blue or water planet because 70% of the earth's surface area is covered with water. The water found in glacier, river, ocean, lakes, underground water, water vapors are the parts of hydrosphere. मीन्स कि वाटर जो भी फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हमें वाटर मिलता है, वो सारा फॉर्म, जितने भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वाटर बॉडीज हैं, वो सभी मिला के हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं. Only 1% water is available on the earth is fit for human use. मीन्स कि जो अर्थ पे जितना टोटल वाटर अवेलेबल है उसका ओनली 1% वाटर ही हम यूज कर सकते हैं. मीन्स ओनली 1% वाटर इज ड्रिंकेबल, या यू कैन से प्योर वाटर. मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर ponds, rivers, springs and the glacier. Means we can say that drinking water is found only in ponds, river, spring and glacier. Water can neither be added nor be subtracted from the earth. Its total volume remain constant. कि वाटर को हम ना ही ऐड करके उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, ना ही उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. यानी कि जो वाटर का टोटल वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहता है, ना वो उससे ज़्यादा होगा ना ही कम. Next is oceans. Ocean are the major part of hydrosphere. The ocean water are always moving. The three chief movements of the ocean water are waves, tides and currents. कि जो हम देखते हैं, जो ओशियन है उनमें जो वाटर का मूवमेंट चलता रहता है उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेव्स, टाइड्स एंड करंट. और इनके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में डिटेल से स्टडी करोगे. अकॉर्डिंग टू द साइज देयर आर 4 मेजर ओशियन ऑन द अर्थ. फर्स्ट इज पैसिफिक ओशियन, सेकेंड इज अटलांटिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन, फोर्थ इज साउथर्न ओशियन एंड फिफ्थ इज आर्टिक ओशियन. First is Pacific Ocean. It is circular in shape and it is the largest ocean of the world, and it covers 1/3 part of Earth. The deepest part of the Earth, that is Mariana Trench, lie under the Pacific Ocean. Asia, North and South America and Australia surrounded the Pacific Ocean. Here you can see image of Pacific Ocean. जो Pacific Ocean है वो उसके चारों तरफ, यहाँ पे हम अब देख सकते हैं एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये चारों तरफ से इसको पैसिफिक ओशियन को कवर किए हुए हैं. जो पैसिफिक ओशियन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है, और जो अर्थ का जो टोटल पार्ट है उसका 1/3 पार्ट
पैसिफिक ओशियन ने कवर किया हुआ, यानी ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी है. सेकेंड इज द अटलांटिक ओशियन. हेयर यू कैन सी इमेज ऑफ अटलांटिक ओशियन. अटलांटिक ओशियन इज एन एस शेप. किसका साइज? इंग्लिश अल्फाबेट एस के जैसा है. एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड. It is flanked by the North and South America on the western side and Europe, Africa at its eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented, which provide ideal location for natural habitat and ports. So it is called busiest ocean of the world. कि एटलांटिक ओशियन वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है और ये चारों तरफ से ने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दिस साइड, यूरोप एंड अफ्रीका से कवर है. और ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट ओशियन है कि जो भी बड़े बड़े पोर्ट हैं, सी पोर्ट हैं, वो सारे इसी के बैंक्स पे लोकेटेड हैं. थर्ड इज द इंडियन ओशियन. It is triangular in shape. Here you can see image of Indian Ocean. It is the nearest ocean of India. The Indian Ocean bounded by the Asia, Africa, Australia continent. The Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is India. कि जो Indian Ocean है वो एक only एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री से के ऊपर रखा गया है. Fourth is the Southern Ocean. Here you can see image of Southern Ocean, that is surrounded for इसने चारों तरफ से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को कवर किया हुआ है. The Southern Ocean encircle the continent of Antarctica. ये इसने चारों तरफ से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को कवर कर रखा है. Fifth is the Arctic Ocean. Here you can see image of Arctic Ocean. It is located in northern hemisphere within the Arctic Circle and surrounded the North Pole. कि इसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ पोल के नियर बाई, इसलिए ज़्यादातर ये और इससे कवर रहता है. It divided into two basin, the Eurasia Basin and the North American बेसिन. कि नॉर्थ अमेरिका के पास इसको नॉर्थ अमेरिकन बेसिन कहते हैं और यूरेशिया के पास इसको यूरेशियन बेसिन कहते हैं. इट इज़ कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशियन बाय बेरिंग स्ट्रेट. कि ये जो पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट होता है तो उस पार्ट को हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं. बेरिंग स्ट्रेट से ये पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज atmosphere. The mass of air or layer of gases that cover the surface of earth is called the atmosphere. It extends up to the height of 1600 km. It protects us from the harmful sun's rays. कि जो एटमॉस्फेयर है वो मोस्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से बना हुआ है और ये हमें सन के हार्मफुल रेज हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है. बिकॉज कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन गैस की लेयर मिलती है और वो जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको अर्थ पे आने से रोकता है. अदरवाइज जब वो अल्ट्रावायलेट जो सन की रेज हैं अगर हम उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उनसे स्किन डिजीज हो जाती है. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज मेजोस्फियर एंड फोर्थ इज थर्मोस्फियर एंड लास्ट इज एक्सोस्फियर. कि जो हमारी अर्थ के जो सबसे नियर बाई जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं और इसका हाइट 0 to ये हम कह सकते हैं कि 18 किलोमीटर तक इसका हाइट होता है. उसके बाद जो सेकेंड लेयर है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर, इसका हाइट 50 किलोमीटर तक होता है. उसके बाद थर्ड इज मेजोस्फियर,
किसका हाइट 80 किलोमीटर तो होगा। देन इज थर्मोस्फियर, इसकी हाइट 800 किलोमीटर तक होती है, और 800 के बाद जो लास्ट हमारा लेयर स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एक्सोस्फियर। और ये इसका हाइट को अब तक मेजर हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जब तक जो लास्ट जहाँ तक पहुँचे वो हम 3000 किलोमीटर तक ही पहुँचे, यानी कि जो इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है। और जो भी हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं दैट इज हैव्ड ओनली इन ट्रोपोस्फियर। जब नेक्स्ट क्लास में आप सेकंड क्लास में इसके बारे में और डिटेल से स्टडी करोगे। Composition of the atmosphere. Atmosphere is made by different types of gases. The first is, जो इसकी सबसे important गैस है वो है नाइट्रोजन, and it cover nearby 79%. Next, second is oxygen that cover nearby 21% of total composition of atmosphere. Only 1% में जो हमें different types of जैसे आर्गन, नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो ओनली 1 पार्ट को बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन इम्पोर्टेंट, यू कैन से मेजर इम्पोर्टेंट गैसेज ऑफ एटमोस्फियर। The density of the atmosphere vary with height. It is maximum at the sea level and decrease rapidly as we go up. कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, यानी सी पे जो सी लेवल है वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, और जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो एयर प्रेशर, कि जो एयर का मूवमेंट होता है वो हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर की तरफ होता है। टेम्परेचर डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड, कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं सी लेवल से जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मूविंग एयर इज नोन एज द विंड। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ लाइफ। कि जो हाइड्रोस्फीयर दैट इज कॉल्ड वाटर एरिया, एटमोस्फियर एयर एरिया, लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट, इन तीनों का जो मिक्स फॉर्म होता है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर हैड लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ, सो इट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ contact between the land, water and air. All the living organisms including human beings linked to each other and to the biosphere for survival. The organisms of biosphere are divided into two parts, the plant kingdom and the animal kingdom, कि जो different types of प्लांट या ट्री की स्पीसीज होंगे उनको प्लांट किंगडम में इंक्लूड करेंगे, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल हैं उनको हम एनिमल किंगडम में इंक्लूड करेंगे। और ये सभी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बींग्स हैं वो बायोस्फीयर में एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं, वो अपने फूड के लिए और सर्वाइव के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। The three domain of the earth interact and affect each other, कि जो अर्थ के मेजर जो डोमेन है वो बायोस्फीयर में एक दूसरे पे इंटरेक्ट रहते हैं और एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड रहेंगे और एक दूसरे को वो अफेक्ट भी करते हैं। कि जो मेजर डोमेन्स हो गए एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, वो बायोस्फीयर में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे और एक दूसरे को इफेक्ट भी करते हैं। For example, cutting of forest for fulfill our need of wood or cleaning land for agriculture may lead to fast removal of soil from slope. कि हमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह हमें क्या चाहिए कि जैसे हाउस बनाने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए हम लैंड को क्लीन कर रहे हैं, या ज़्यादा वुड चाहिए तो उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो अर्थ का जो हमारा टॉप मोस्ट सोयल है वो क्या हो रहा है, रिमूव होता जा रहा है। तो उसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर फेस पड़ने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, या यू कैन से सुनामी,
और ये सभी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो हमारा बायोस्फीयर है या नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको हमने पोल्यूट करना या उसको ज़्यादा हार्म करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल industry, thermal power plant and vehicles pollute the air. Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of carbon dioxide led to increase in global temperature and this is called global warming। कि जैसे हमने रीड किया कि जो हमारा मेजर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें 1% से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड है, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो भी पोल्यूशन होता रहा, एयर पोल्यूशन, तो जो भी इंडस्ट्री है, थर्मल पावर प्लांट है, व्हीकल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो भी उसकी कॉन्सिस्टेंसी थी वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, और उसका इंक्रीज होने से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ज़्यादा बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम क्या करें कि जो भी नेचर हमें दे रही है, कि जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनका हम मिनिमम यूज करें, यानी कि हमें क्या होगा, अर्थ के साथ, हमें नेचर के साथ, अर्थ के साथ बैलेंस बना के चलना होगा, ताकि कि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, नेचुरल डिजास्टर वगैरह हो रहे हैं वो ना रहें और हमें अपना लाइफ ढंग से सर्वाइव कर पाए। मीन्स इट इज we have to maintain the balance of nature between the domain of lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. Now our chapter will be completed. In this chapter we had discussed about different types of major domains of the earth, that is atmosphere, that include different types of gases, hydrosphere that include different water bodies, and major ocean, lithosphere that is covered with different land masses, it include different continent, and last is biosphere that is the domain of the life, because it is the narrow zone of content between the three major domains। कि जो भी हमारे थ्री मेजर डोमेन हैं, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर, वो तीनों बायोस्फीयर में आके मिक्सअप होते हैं और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं। So biosphere is the major domain of life. Thank you.